مرادر چاروکا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنیا چونکہ بلوچستان اسمبلیہ مائنز اینڈ منرل بل کے ہستے 2025 منظور کنک بتا اور چرشیا منظوریہ چیزی رو چپاد مدستگا کہ بلوچستان اسمبلیہ ای حوالہ مزنی جاخو سلواتی بتگا تو بلوچستان سابق وزیر اعلیٰ نیشنل پارٹی سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ہم ای بل حوالہ تفضات یعنی قدشات اظہار کو تگا تو ای کچھ ہمیشہ کہ ای بل کے ہستے ہمارا پیش درک بتا تو دیگه بلی بوتا و دومی نمگا ای که پاس کنک بوتا ای بلا اور بلا فرقی تو گوادرا چا رکن صوبہ اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان ہم ہمیں گشتگا کہ ماں قوما چی پہلی لوٹا کہ ماں ای بل اکا اوٹتا تھا تو ای منرل اینڈ مائنز بلز کہتے ہیں ایشیے پاس بو کا پد بلوچستان بعضیں وسائل کے ہستاں آنی اختیارات صوبہ چی پچگرہ کو وفاقہ دیکھ بھی تو ہمیں حوالہ گستگے روچا نوافزادہ حاجی لشکر رئیسانی صاحب کیا سابق سینیٹر ہیں اور سیاسی و قبائلی رہنمائی تو آئیے ایک پریس کانفرنس کو تگا تو آئیے مائنز اینڈ منرلز بلز کے ہستے ہیں آئیے والا کا پترانہ ابید دیگے بازیں ہیں بلوچستان سیاسی صورتحال اسرام نعمان اس طرح کا بچے تگا بلے آئیے یہ پریس کانفرنس سے بنیادی مقصد یا پریس کانفرنس سے تو کا اہم نقطہ منرلز اینڈ مائنز ایکٹ کے ہستے ہیں آئیے پاس کنائن کے حوالہ یہ کچھ ہمیشہ کہ ما ای بلا تھی ہمراہ سنگتاں کو مشورہ کو تھا تو ہمارا جو ہستے ہیں فیصلہ ہمیشہ کہ مائی بلا عدالتہ سپریم کورٹہ چیلنج کرنے دو منیم کا یہ کچھ ہمیشہ کہ بلوچستان وسائلانی یا بلوچستان حقوق یا وسائلانی دفاعی اکمار ہستے ہیں تو پریس کانفرنس سے دوران یہ ہم گشتگا کہ ہمارا آمیدگس کے ہستا انسرا بھروسہ نہیں تو 2018 پد موتی الیکشن ایک اٹکے کی سے حوالہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ہستا شتگا بولے منا انصاف نہ رستا تو یہ حوالہ اجزا بچے گشتہ گپا دلگوش کرنے موتی مراکشہ دیماغ پہ اسمبلی میں اپوزیشن نے یہ بل پیش کیا اور اس اپوزیشن نے بعد میں کہا کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلا تو میں مطالبہ کرتا ہوں بلوچستان کے ہر باشعور شخص کی طرف سے کہ جب اپوزیشن کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ایکٹ پیش ہو رہا ہے یا وہ مستعفی ہو اگر بلوچستان کے ساتھ ان کو تھوڑا سا ہمدردی ہے یا پھر ان کو چاہیے کہ قرارداد لائے کہ یہ ایکٹ ان کو قبول نہیں ہے اس کو واپس سے ریوائیو کر کے اس قرارداد کو ختم کرایا جائے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس نئے ایکٹ کو جس کو جعلی پولیٹیکل پارٹی نے بنایا ہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے اس پہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں بھلے عدالت ہمیں کوئی ریلیف نہ دے کیونکہ یہ جعلی 18ویں ترمیم کے صوبائی خود مختاری کے خلاف ایک ایکٹ قائم کیا گیا ہے جو ہمارے وسائل پہ ہمارے اختیار ختم کر چکا ہے ہمارے وسائل پہ آئندہ نسلوں کا اختیار ختم کر چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کا یہ ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کرے اور ہم انشاءاللہ اس ایکٹ کو عدالت میں چیلنج کریں گے مرادر چاروکا نوافزادہ حاجی لشکر رئیسانی صاحب شما کا پول دلگوش کو تھا تو چونکہ ای بل کے ہستے ایکٹ کے ہستے مائنز اینڈ منرل آیا اعلان کو تھا فیصلہ کو تھا کہ عدالتہ چیلنج کرنے بھی دو منیم کا یہ کوشش ہمیشہ کہ صوبہ 2008 پد صوبائی خود مختاری دیکھ بتا اور 18ویں ترمیم پد وسائلانی سرا گشتریں اک کے ہستے صوبانی کے بلش باوجود اس سرا قدگن جنک بوگائیں صوبانی اک یا پچگرک بوگا تو آئیے یہ کوشش کہ منرل اینڈ مائنز ایکٹ کے ہستے ہیں صوبائی خود مختاری کے خلاف ہیں تو معاشی چوڑا قبول نہ کرنے تو یہ کچھ ہمیشہ کہ 18ویں ترمیم پد میں گندے کے فیصلہ کنک بتا کہ درستیں اختیارات وسائل انسرا صوبانی با اور چرچ پد میں گندے کے آئین خلاف ورزی 18ویں ترمیم خلاف ورزی آئین خلاف ورزی ہیں ریکارڈ ایک معاہدہ کے ہستے ہیں منسوخ کنائنا اور $6 بلین اثاثہ کے ہستے ہیں پراسرار وڑیا مشکوک طریقہ کے ہستے ہیں دگرانی حوالہ کا نقبوت تو یہ بعض المناک اور خطرناک صورتحال ہے تو آئیے کچھ ہمیشہ کہ مزید یہ پہ عدالتہ بھرے ہوں عدالت کے ہستے ہیں یہ فیصلہ بکا چونکہ صاحب ہوتی کوشش کہ عدالتہ نے سر ہمارا بھروسہ نہیں بولے پدا ہم مجبوری شعرا آمید گسان چسکانے تو شعبید آئیے بلوچستان مجموعی صورتحال امن و امان اور بلوچستان لاشانی دور دیا یا گارو بیگوائیں مردمانی بابتائیں پریس کانفرنس دورانا گپ پتران کو تھا تو دو بھی نمگا یہ گشتہ کہ بلوچستان اما علاقہ ہے کہ معدنی وسائل کے ہستے ہیں آج سر چکاریں بڑے بلوچستان ملوک کا شانچی اچھ فائدہ رسگا نہیں ہمارا دار چاروں کا یہ لائن سر میگونا ایڈوکیٹ رائے بلدی صاحب سینئر وکیلی
पाकिस्तान बार कौंसिल सीनियर रहनुमाई मौजूद हैं। आइए को मिनरल्स एंड माइंस बिल्स एक्ट के हवाला का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। तो सर ये जो माइंस एंड मिनरल एक्ट है वो मुतनाज़ा है, उनको मंजूर पास भी किया गया असम्बली में, लेकिन हमने देखा कि जो कुछ सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, डॉक्टर मालिक साहब या दूसरे, उन्होंने कहा कि इसमें हमें जो बिल दिखाया गया वो कुछ और था जिनको पास किया गया, उसके शेक में बड़ा फ़र्क है। कल लश्कर रईसानी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये बिल जो है इनको हम अदालत में चैलेंज करेंगे। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं उसमें क्या चीज़ें मुतनाज़ा हैं जिसमें तमाम सियासी जमातों को बलूचिस्तान के जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके खदशात हैं? सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि कोई भी कानून आइन से जो है मुबरा नहीं है। आइन पाकिस्तान में तमाम सूबों के जो कौमी वसाइल है, उनकी जो हल है, उनका जो तरीक़ाकार है, वहाँ बाकी तो सब कुछ एक वाज़ेह है कि जब जिस सूबे के वसाइल हैं, सबसे पहले उस सूबे के वसाइल में वहाँ के अवाम का बुनियादी हक है। उनकी मर्जी के बगैर, उनकी मंशा के बगैर आप कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये जो खुद एक जो माइंस और मिनरल एक्ट बिल जो लाया गया है, बलूचिस्तान असेंबली में जो पास कराया गया है, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा कानून है जो कि आइन से मुतसादम कानून है। 18वीं तरमीम के बाद बाकायदा तौर पर एक 18वीं तरमीम एक ऐसा तरमीम था जिसमें तमाम पार्टियों की बाकायदा नुमाइंदगी थी और सिविल सोसाइटी की से डिस्कशन रहा। कोई भी आइन साजी हो, कोई भी कानून साजी हो, देखिए आइन बुराई तौर पर खुद एक अवाम का एक जो है के लिए वो की जाती है और अवाम का एक कंटेक्ट है और उनकी सोशल कंटेक्ट को मद्देनजर रखकर कोई कानून की साजी की जाती है। बलूचिस्तान माइंस और मिनरल एक्ट के खिलाफ जो सियासी पार्टियों को जो खदशात हैं, इससे पहले हमने भी बलूचिस्तान बार काउंसिल ने भी अपने खदशात का इज़हार किया था। ये माइंस और मिनरल जो एक्ट जो लाया गया है, इसमें ये आवाम को ना तो पार्लियामेंट के अंदर कोई बहस की गई है, ना ही बलूचिस्तान असेंबली में बहस की गई है, ना ही मेरे ख्याल में इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली में बैठे हुए मैं 2-4 मेंबर पार्लियामेंट के अलावा बाकियों का मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं और उन्हें शायद इसको कोई स्टडी भी की हो, इसको कोई पढ़ा भी हो। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो माइंस और जो मिनरल एक्ट जो बलूचिस्तान लाया गया है, ये वफाक का बराह रास्त सूबों की वसाइल पर लूटने की एक मुतरादिफ है और वो तमाम चीज़ें अपने जो है इस एक्ट के ज़रिए वफाक अपने कंट्रोल में लाना चाहती हैं। इस एक्ट के बाद तमाम चीज़ें जो फैसले जो होंगे वो वफाक में करेंगे। उससे जो छोटे आपके जो सरमायाकार हैं, जो माइंस और मिनरल एक्ट माइंस और मिनरल के जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो माइंस के बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो इस पर बराह रास्त मुतासर होंगे। तो मैं समझता हूँ ये बिल खुद एक जो है कि आइन से मुतसादम है और इसकी जो लाने वाले हैं वो खुद उस चीज़ से नाला हैं, उन्होंने कभी किसी को इसकी स्टडी भी नहीं की है। तो मैं समझता हूँ ये बलूचिस्तान के मादनियात पे और ख़ुसूसन जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बिल लाए गए, इन सूबों की मादनियात को वफाक अपने कंट्रोल में लाना चाहता है और ये इसलिए लाया गया है। तो एडवोकेट साहब हम ये भी देख रहे हैं कि एक जो है आइन के आर्टिकल 172(3) की खुली खिलाफ वर्जी है, जैसा कि आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया। तो 18वीं तरमीम के बाद जो मादनी वसाइल में सूबों का इख्तियार जो है सूबों को इख्तियार दिया गया है, क्या जब ये एक्ट पास हो गया है, अगर इस पर अमल दरामद हो गया तो क्या जो वसाइल हैं या मादनी वसाइल हैं सूबे के, तो 18वीं तरमीम के उनको जो इख्तियारात हासिल थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और उनके जो शेयर मिलने वाले हैं उसमें भी असर पड़ेगा? देखिए अल्ताफ साहब, सबसे पहले तो ये बात बताता चलो कि माइंस और मिनरल्स एक्ट से कबल जो बलूचिस्तान के अंदर जो रेकोडेक का जो फैसला किया गया था, वो भी बराह रास्त सूबों के मादनी वसाइल पे कब्जा करने का एक फैसला था। जैसे सेंधक का फैसला हुआ है, रेकोडेक का फैसला हुआ है, जैसे सीपेक का फैसला हुआ है। बलूचिस्तान में वफाक जब भी जिस तरीके से चाहता है वो बलूचिस्तान के वसाइल को अपने कंट्रोल में लाने के लिए कोई ना कोई आइन साजी कानून साजी करता है। आप रेकोडेक का मिसाल ले लें। रेकोडेक में जब एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी की खातर उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी ने ख्वाहिश जाहिर की कि इस रेकोडेक के जरिए जो हमें शायद कोई कोर्ट में ना जाए, कोई कानून साजी ना करे, कोई अदालतों में चैलेंज ना हो, तो उन्होंने सदर के जरिए हमारे सदर पाकिस्तान ने एक रेफरेंस दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने सदर के रेफरेंस पे और मल्टी नेशनल कंपनी के चॉइस पे एक फैसला दिया था। जैसे मल्टी नेशनल कंपनी का हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला दिया है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहला वही जो आपका जो मुआहदा जो था रेकोडेक के हवाले से बराह रास्त जो कि वफाक ने उसको उठा के सुबह से उठा के उन्होंने अपने मर्जी की जो कानून साजी की है, इसके जितने भी वहाँ पे जो मादनी वसाइल हैं और इनकी जितने भी फवायद हैं और सबसे बुनियादी चीज़ें तक आप रेकोडेक से क्या
निकालने जा रहे हैं, और ये कौन सा ऐसा जो मैकेनिज्म होगा जिसकी मिट्टी से निकाला गया सोना, और उनकी मिकदार क्या होगा, और उनकी फेंसिंग क्या होगी। ये बदकिस्मती है कि हमारे सूबे की वसाइल है, और इस पे सबसे बेहतर ये था कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग था वो सूबे के अंदर होता, सूबे पर उसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता। अब बदकिस्मत ये किसी को पता भी नहीं है कि ये रिकॉर्ड एक्ट आपके हाथ से चला गया। अब ये जो माइंस और मिनरल एक्ट है ये खुद इस चीज़ की एक कड़ी है, और मल्टीनेशनल कंपनी और इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये एक्ट भी लाया गया है। तो लेकिन एडवोकेट साहब, चूँकि आप एक सीनियर कानूनदान भी हैं, तो बुनियादी तौर पर अगर ये आइन की 72(3) की खिलाफ वर्जी है तो लश्कर रईसानी साहब ने कल कहा कि हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। अगर इनको अदालत में ले जाया गया जब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इसमें जो अदालत का फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो उसका फैसला क्या होगा? क्या आप इसको मुस्तरद नहीं किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद 18वीं आइनी तरमीम, जो कि तमाम सूबों के वसाइल के हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से और तमाम कौमों के लिए काबिल कबूल एक तरमीम थी। 18वीं तरमीम के बाद ये जो 26वीं आइनी तरमीम जो लाया गया है, इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उन्होंने इस 26वीं आइनी तरमीम को सपोर्ट किया, अब हमारे पास अदालतें आज़ाद अदालतें नहीं है। हमारी अदालतें एग्जीक्यूटिव की कंट्रोल हैं। हमारी अदालतें का फैसला ना तो वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, ना ही वो किसी किताब और लॉ को देकर फैसले करते हैं। ये आइन का आर्टिकल 172 सब क्लास 3 के बिल्कुल ही वायलेशन है। लश्करी साहब ने इसको चैलेंज करने का जो फैसला है, खुशाइन फैसला है, हम समझते हैं कि इसको बिल्कुल चैलेंज होना चाहिए, और लश्करी साहब ने जो इसकी जो पहल की है ये अच्छा अमल है, इसको चैलेंज होना चाहिए। हमें जैसे भी हैं, हमें अदालतों पे, इन्हीं अदालतों के पास में जाना होगा, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो लाया गया, जो 26वीं आइनी तरमीम में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके जिम्मेदार हैं, मैं समझता हूँ कि ये तारीख का ये सबसे बड़ा जबर था। एक कौमों के लिए एक ही जरिया था, कोई इंसाफ के लिए थोड़ा बहुत जो हमें एक उम्मीद थी, तो वो आप अदालतों में जाते, आप इंसाफ के लिए जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में जाते। अभी आप खुद देख रहे हैं कि गुज़श्ता ये 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फैसला आया है कि सिविलियन की आर्मी अदालतों का ट्रायल होना। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती था हमारे तारीख में, जुडिशरी की तारीख में। इस तरीके से वहाँ पे जो PTI का या सुन्नीताज का जो आज़ाद जो अरकान है, अब इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद जीत के आते हैं, आप उनको मखसूस नशस्तें से महरूम रखते हैं। ये क्या था? ये 26वीं आइनी तरमीम का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच का एक फैसला है कि भाई मखसूस नशस्तें PTI को मिलनी चाहिए, इसके बावजूद भी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने, हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम इसलिए लाया गया कि PTI से उसकी मैंडेट चोरी करें, और अभी उन्होंने मनपसंद आइनी बेंच तश्कील दिया। आइनी बेंच कौन तश्कील देता है? जो हुकूमत खुद तश्कील देती है। अब हुकूमत अपने ही खिलाफ, जो हुकूमत के खिलाफ जो केस होगा और उसका जो समाअत होगा वो आइनी बेंच करेगा, और आइनी बेंच में कौन बैठा होगा? जिससे हुकूमत खुद बैठाएगा। तो ये खुद एक बहुत बड़ा तजाद है इस सिस्टम के अंदर। मैं समझता हूँ कि इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज 26वीं आइनी तरमीम में इसके हिस्सादार हैं, वो खुद इसके जिम्मेदार हैं। तो एडवोकेट साहब, जैसा कि हमने देखा कि ये बिल जो है पास हो गया, मंजूर हो गया असेंबली में, तो हुकूमत ने कहा कि अपोजिशन ने हमारी भरपूर साथ दिए, लेकिन अपोजिशन जमातों, डॉक्टर मालिक साहब या JUI से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं अपोजिशन लीडर या अपोजिशन अरकान ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए कि हमें जो है धोखा दिया गया है। तो बुनियादी तौर पर जो अपोजिशन जमातें, उससे इतनी बड़ी गलती सरजद कैसे हुई? क्या चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं की गई, या दिखाया कुछ और मंजूर कुछ और कराया गया? ये कैसे हुआ? ये कोई मुमकिन नहीं है कि अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिए बिल उसको दिखाए बगैर जो है ना इसको मंजूरी लेगी। हाँ, अपोजिशन जमातों ने इसको इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं की होगी कि इतना बड़ा बिल है और हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, तो शायद अपोजिशन जमातों ने इसकी एक तो बलुस्तान में कोई अपोजिशन जमात है भी नहीं जिसे कोई हम अपोजिशन कहें। तो जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ फेडरल में भी साथ है, 26वीं आइनी तरमीम में भी साथ है, और माइंस मिनरल एक्ट में भी साथ है। इस तरीके से हमारी पार्टियां भी 26वीं आइनी तरमीम में भी साथ हैं, और माइंस मिनरल एक्ट को पास करने में भी साथ हैं। तो ये खुद एक सवाली निशान है हमारे पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, पाकिस्तान पार्लिमानी तारीख का, कि एक तरफ हम अपोजिशन में भी हैं और दूसरी तरफ हम हुकूमत के हर उस नाजायज़ इक़दामात की सपोर्ट करते हैं जो कौमों के लिए नाकाबिल कबूल है। ऐसी बिल, ऐसे तरामीम जो 26वीं आइनी तरमीम हो, माइंस मिनरल एक्ट हो, या रेकोडेक का मसला हो, या सेंडेक हो, या CPEC हो, जो भी कानून साजी की गई हो, मेरे ख्याल में ये सब और सिर्फ एक तबके की एमा पे की गई हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट है, और वो जोरावर तबका है, और जोरावर के सामने कोई भी नहीं बोलता है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राय बलेदी एडवोकेट साहब टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे मदर चारों का एडवोकेट राय बलेदी साहब जो का पुत्रान का नाई कुछ हमेशा के अपोजिशन जमात के अस्ता आना चीज़ देखे पेशदारा को देखे देमा इरकनक बुता चूँकि अगर चारक भी तो ये आईने आर्टिकल 172(3) कुली खिलाफ वर्जी और दोनों निगमा ये हम गेंदे के 18वीं तरमीम के हस्ते 18वीं तरमीम दरजा सूबा के हस्ते खुद मुख्तार वती वसाइला सरब लिशे बावजूद के हस्ते ये बिल पास कनक बुता तो 18वीं तरमीम में हम एक खिलाफ वर्जी जानक भी माइंस एंड मिनरल एक्ट बिल सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि वसाइल के हस्ते एक सूबा ही है ये लूट मार एक मदनी मनसूबा बंदी के या कनक बुता ये एक तहा बाज़ें चीज़ के हस्ता हमें गोशक बुतगा के वहाँ वसाइल के हस्ता रियासती कंट्रोलर दियकबा वफाक के हस्ते आनी सरा वफाक अजारादारी गेश भी और सूबा अजारादारी कम भी तो दोमिनिम का 18वीं तरमीम वदी के चीज़ मौजूद हैं तो 18वीं तरमीम दरचा अगर मौजूद हैं चीज़ां ही खिलाफ वर्जी कनक भी तो 18वीं आइनी तरमीम खिलाफ वर्जी हैं तो दोमिनिम का मगने के आइन तौरा फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के हस्ते आइए इससे दो माही का वाज़े हैं कि मादनी वसाइल के हस्ते हैं मादनी वसाइल तरक्की मामला सूबानी मामला इसी तो वफा के चौड़ी मुदाखलत खुद नका तो ये कुदरती वसाइल के हस्ते सूबा वफा के मुश्तरका मिल्कियत ऐसा ना देखे कोई बहस या कोई डिबेट और डिस्कशन गुंजाइश नहीं इसते बल्कि एक आइनी हुक्म इशिए पासदारी कनक के हस्ते हर पार्लियामेंटेरियंस के हस्ते हर शहरी के हस्ते आइए बुनियादी जिम्मेदारी इसके बावजूद में गंदगाएँ कि इशिए खिलाफ वर्जी कनक बोगाएँ और सूबा के हस्ते आना चाहे वसाइल पचकरक बोगा और रियासती कंट्रोल आन इस तरह गेश कनक बोगाएँ तो चीज़ें सीनियर पार्लियामेंटेरियन के हस्ता चूँकि यहाँ असम्बली फ्लोर आएगा मान्यता के यहाँ गो दोका कनक बुता दोमिनिम का वदी के यहाँ निकतशात तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं तो हुकूमत ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान हुकूमत के इस तरह नज़रसानी भी कहाँ दोमिनिम का एक्ट के हस्ते इसी हवाला असम्बलिया दोबारा डिबेट और डिस्कशन भी या मंजूरी वास्ता दोबारा आ रही है चूँकि चीज़ें सीनियर पार्लियामेंटेरियन के हस्ता अहम हमें मुतालबा को तबरे के ज़रूरी पास में निवाकाएँ गेशिंग का पुत्रान करनी